नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञानं नमलोए सर्वसाहुणम्। ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञानं नमलोए सर्वसाहुणम्। ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञानं नमलोए सर्वसाहुणम्। ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञानं नमलोए सर्वसाहुणम्। ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञानं नमलोए सर्वसाहुणम्। ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञानं नमलोए सर्वसाहुणम्। जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण पर्वना 7मा दिवसे स्वाध्याय शास्त्र स्वाध्यायનો આપણે પ્રારંભ કરીએ છીએ। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायिनीति योगिनीम कामदेव मोक्षदेव चैव ओमकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो पक्षालित सकल भूतल मलल कलंका मीनु विरूपासीत तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरीतान्। अज्ञान तिमिरांधना अज्ञान जन्य शल्याकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्वसूत्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूपता ज्ञातारं विश्वतत्त्वना वन्दे लब्ध गुण लब्धये। तैकाल्यं द्रव्य षष्ठ नवपद सहित जीव षष्ठ कायलेस्या पंचनाये चास्तिकाया व्रत सीमित गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येनो मोक्ष मूलम त्रिभुवन महीते प्रोक्त महद विरिसे प्रत्यादि श्रद्धाति स्पृश्यात्यमान यह सर्वश्रुद्रष्टि सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाण फलम पत्ते वंदिता अर्हंत विच्छ अर्हणा कमसो उज्जवणमोज्जण विहण सहाणश्चम दशणाम चरित्र तवाण माराहणा बाणिया। આજે હું પહેલા અધ્યાય 6 નું ગુજરાતીમાં વાંચન કરું છું અને પછી 7 નું। મન વચન કાયાની ક્રિયાને યોગ કહે છે। તેનું નામ જ આસ્ત્રવ છે। શુભથી પુણ્યનો અને અશુભથી પાપનો આસ્ત્રવ થાય છે। જીવોને કસાઈ હોય તો સંપારિક આસ્ત્રત આવે છે અને કસાઈ રહિત ઈર્યાપંથ આસ્ત્રવ આવે છે। સંપારિક આસ્ત્રવના ઇન્દ્રિય કસાઈ અવરત ક્રિયા અને તેના ક્રમથી 5 4 5 25 ભેદ છે। 5 तीव्र मंद ज्ञाता अज्ञात भाव अधिकरण वीर्यनी विशेषताथी आस्त्रव ओछा वत्ता छे। छठ्ठू आस्त्रवनो आधार जीव अजीव छे। 7मु जीव अधिकरणना समारंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमोदना क्रोध मान माया लोभ क्रमथी 3 × 3 × 3 × 4 એટલે 108 ભેદ થાય છે। 8 નિવૃત્તના નિક્ષેપ સંયોગ નિસર્ગ તેના ક્રમથી 2 + 4 + 2 + 3 એટલે 11 ભેદ અજીવ અધિકરણના છે। 9 જ્ઞાન વर्ण અને દર્શનાવરણનો આસ્ત્રવ પ્રદોષ નિહામ માર્તસ્ય અંતરાય આસાદન ઉપઘાતથી થાય છે। 10મું દુઃખ શોક તપ આક્રંદ વધ પરિદેવનથી પોતાનું પારખાનું અને બંનેનું અહિત કરવાથી
આસ્ત્રાવ વેદની કર્મનો આસ્ત્રાવ થાય છે. 11 ભૂત વ્રતિ અનુકંપા દાન સારંગ સંયમાદિ યોગ શ્રાંતિ શૌચથી 7 વેદનીય કર્મનો અસ્ત્રાવ થાય છે. 12મું કેવલી શ્રુત સંગ ધર્મ અને દેવોનો અવર્ણવાદ એનો અર્થ નિંદા કરવાથી દર્શન મોહનીય કર્મનો આસ્ત્રવ થાય છે. 13 કસાઈના ઉદયથી તીવ્ર પરિણામથી ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો આસ્ત્રવ થાય છે. 14 ઘણો આરંભ અને પરિગ્રહથી નરકાયુગનો આસ્ત્રવ થાય છે. 15 માયાથી તિર્યંચ આયુનો આસ્ત્રવ થાય છે. 16 થોડા આરંભ અને પરિગ્રહ કરવાથી મનુષ્ય આયુનો આસ્ત્રવ થાય છે. 17 સ્વભાવની કોમળતા પણ મનુષ્ય આયુનો આસ્ત્રવ થાય છે. 18 શીલ વ્રત અહિંસાદી 5 વ્રતો રહિત 4 ગતિનો આસ્ત્રવ છે. 19 સરાગ સંયમ સંયમા સંયમ અકામ નિર્જરા બાલ તપથી દેવોનો આયુનો આસ્ત્રવ થાય છે. 20 સમ્યક્તવાથી પણ દેવો આયુનો આસ્ત્રવ થાય છે. 21 યોગની વક્રતા 20 વાંદથી અશુભ નામ કર્મનો આસ્ત્રવ થાય છે. તેનાથી ઉલટા ભાવથી શુભ નામ કર્મનો આસ્ત્રવ થાય છે. 23 દર્શન વિશુદ્ધિ વિનય સંપન્ના શીલ વ્રતિની ચાલ અભિક્ષણ જ્ઞાન પ્રયોગ સંવેગ શક્તિ ત્યાગ શક્તિ સ્તપ સાધુ સમાધિ વૈયાવૃત અર્હંત ભક્તિ આચાર્ય ભક્તિ બૃહસ્વ ભક્તિ પ્રવચન ભક્તિ આવશ્યક પરિહાણી માર્ગ પ્રભાવના પ્રવચન વત્સલ્ય એ આ 16 ભાવનાથી તીર્થંકર નામ કર્મનો આસ્ત્રવ થાય છે. 24 નંબર પારકાની નિંદા પોતાની પ્રશંસા પારકાના ગુણોને ઢાંકવા ને પોતાના ગુણ પ્રગટ કરવાથી નીચ ગોત્રનો આસ્ત્રવ થાય છે. 25 તેનાથી ઉલટી ક્રિયાથી ઉચ્ચ ગોત્રનો આસ્ત્રવ થાય છે. 26 પારકાના દાન ભોગાદિકમાં વિઘ્ન કરવાથી અંતરાય કર્મનો આસ્ત્રવ થાય છે. ઇતિ તત્વાર્થ ગુર્જર ભાષામાં 6થો અધ્યાય. હવે આપણે 7મો અધ્યાય ગુજરાતીમાં આજના દિવસનો. હિંસા અસત્ય ચોરી અભ્રમ પરિગ્રહથી વિરક્ત થવું એ વ્રત છે. શું કહ્યું? હિંસા અસત્ય ચોરી અભ્રમ પરિગ્રહથી વિરક્ત થવું એ વ્રત છે. તેનાથી એક દશે ત્યાગ અણુવ્રત છે ને સર્વ દેશ ત્યાગ મહાવ્રત છે. બીજું તે વ્રતનો સ્થિર રાખવા દરેક વ્રતની 5 ભાવના છે. મનગુપ્તિ વચનગુપ્તિ ઈર્યા સમિતિ આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ અલોકીપાત પાન ભોજન આ 5 ભાવના અહિંસા વ્રતની છે. ચોથું ક્રોધ લોભ ભય હાસ્ય અનુવિચી ભાષણનો ત્યાગ આ સત્ય વ્રતની 5 ભાવના છે. શૂન્યવાસ વિમૂર્છિતવાસ પરપરો ધ્યાન કરવો ભિક્ષા શુદ્ધિ કરવી સધર્મી ભાઈઓ સાથે વિસ્વાદ ન કરવો આ ઔચર્ય વ્રતની 5 ભાવના છે. સ્ત્રી રાગ કથા શ્રવણ સ્ત્રી મનોહર અંગ નિરીક્ષણ ખૂબ સુંદર છે. મનોહર અંગ નિરીક્ષણ પૂર્વ ભોગ સ્મરણ પુષ્ટ રસ ભોજન શરીર સંસ્કાર ત્યાગ આ બધા ત્યાગ તે બ્રહ્મચર્યની 5 ભાવના છે. 5 ઇન્દ્રિયોના ઇષ્ટ અનિષ્ટ વિષયોમાં રાગ દેશનો ત્યાગ આ 5 ભાવના પરિગ્રહ વ્રતની છે. હિંસાદી 5 પાપ કરવાથી આલોક પરલોકમાં આપત્તિ અને નિગ્ન કષ્ટ સહન કરવું પડે છે. 9મું અથવા દુઃખરૂપ જ છે. 10મું મૈત્રી. હવે મૈત્રીનું પ્રમોદ કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ આ 4 ભાવના સત્વમાં ગુણાધિક્ય કલેશતીમાં વિનયમાં ક્રમથી રાખવી જોઈએ. 11મું સંવેગ અને વૈરાગ માટે જગતનો અને કાયાનો વારંવાર વિચાર કરવો જોઈએ. પ્રમત યોગથી પ્રાણનો ઘાત કરવો તે હિંસા છે. અસત અબધિક
જ્ઞાન અને અસત્ય છે. 14મું, વગર આપેલી વસ્તુ લેવી તે ચોરી છે. પ્રતિક્રિયા અભ્રમ છે. બાહ્ય અને અભ્યંતર, ચેતન અચેતન વસ્તુમાં મમત્વ રાખવું તે પરિગ્રહ છે. માયા મિથ્યાત્વ નિંદા રહિત વ્રતિ છે. 18મું, અગારી અને અનગારી બે પ્રકારના વ્રતિ હોય છે. 19મું, અણુવ્રત ધારનાર અગારી કહેવાય છે. અને દિગ્વિરતિ દેશવિરતિ અનર્થ દંડ વિરતિ આ ત્રણ ગુણવત સામાયિક પોષતોપાસ ઉપભોગ પરિભોગ પરિમાણ અને અતિથિ વિભાગ આ ચાર શિક્ષા વ્રત છે. આ વ્રતોધારી ગૃહસ્થ છે. મરણ વખતે સલ્લેખના કરવી, શંકા કાક્ષા વિચિકિત્સા અન્ય દ્રષ્ટિ પ્રશંસ્ય મિથ્યા દ્રષ્ટિ સ્તવંતે સમ્યક દર્શનના 5 અતિચાર છે. 5 અણુવ્રત અને 7 શીલ વ્રતના 5 અતિચાર છે. વધ બંધ છેદ અતિ ભારોપણ અન્નપાન નિરોધ એ 5 અહિંસાણું વ્રતના અતિચાર છે. મિથ્યા ઉપદેશ રહોપાખ્યાન કુટલેખ ક્રિયા ન્યાસપહાર સંક્રામક ભેદ આ 5 સત્યાણું વ્રતના અતિચાર છે. સ્તેન પ્રયોગ તદ્દાન વિરુદ્ધ રાજ્યતિક્રમ હિનાધિકમાનો માન પ્રતિકરૂપ વ્યવહાર છે. 5 ઔચાર્યણું વ્રતના અતિચાર છે. પર વિહારણકરણ પરિગ્રહિતા ઇત્યારિકા ગમન અપરિગ્રહિતા ઇત્યારિકા ગમન અનંગ ક્રીડા કામતી વિભાનિવેશ આ 5 બ્રહ્મચર્યાણું વ્રતના અતિચાર છે. ક્ષેત્ર વાસ્તુ હિરણ્ય સુવર્ણ ધન ધાન્ય દાસી દાસ અને કુપ્ય આ 5ના માપનું ઉલ્લંઘન કરવું તે પરિગ્રહ પરિમાણ વ્રતના અતિચાર છે. ઉર્ધ્વ અધો તિર્યક અતિકામ ક્ષેત્ર વૃદ્ધિ સ્મૃત્ય ધારણા આ 5 દિગ્વંતના અતિચાર છે. આ નયન પ્રેષ્ય પ્રયોગ શબ્દાનુપાત પુદ્ગલ ક્ષેપ એ 5 દેશ વિરિત વ્રતના અતિચાર છે. કંદર્પ કૌચ્ય મોક્ષર્ક અક્ષિમિક્ષાધિકરણ ભોગ પરિભોગ અનર્થ આ 5 અનર્થ દંડ વિરત વ્રતના અતિચાર છે. મન વચન કાયાનું દુઃખ પણી ધ્યાન અનાવર સ્મૃત્યુનું પ્રસ્થાન આ 5 સામાયિક વ્રતના અતિચાર છે. અપ્રત્યેવેક્ષિત અપ્રમાર્જિતોત્સર્ગ અપ્રત્યેવેક્ષિતા પારમજિતાદાન અપ્રત્યેવેક્ષિતા પારમજિતસ્ત પ્રક્રમણ અનાદર શ્રમૃત્યુનું પ્રસ્થાન આ 5 પોષધોપવાસના અતિચાર છે. સચિત સચિત સંબંધ સચિત સમિશ્ર અભિશ્રવ અને દુઃખપ એ 5 ભોગપ ભોગ પરિમાણ વ્રતના અતિચાર છે. સચિત નિક્ષેપ સચિતા વિધાન પરવ્ય પ્રદેશ માત્સલ્ય કાલિતિકમ આ 5 અતિથિ વિભાગ વ્રતના અતિચાર છે. જીવિત સંસા મરણસા મિત્રુના રાગ સુખાનું બંધ અને નિદાન આ 5 સલ્લેખના અતિચાર છે. પોતાના અને પારકા ઉપકાર નિમિત્ત દ્રવ્યાદિકનો ત્યાગ ને દાન કહેવાય છે. વિધિ દ્રવ્ય ધાતુ પાત્રની વિશેષતાથી દાનમાં વિશેષતા થાય છે. ઇતિ તત્વા સૂત્રે ગુર્જર ભાષામાં 7મો અધ્યાય 7 અધ્યાય આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કર્યા. હવે આપણે આજે ફરી એનું સંસ્કૃતમાં એક અધ્યાય કરી લઈએ. અધ્યાય 6 કાયાવાડમન કર્મયોગ શાસ્ત્રવ શુભ પુણ્યાશુભ પાપસ્ય सकपा कसायो संपरारी केवर पथारो इंद्रा कसाय व्रत क्रिया
पंच चतुर पंच विसंत संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मदज्ञात ज्ञाता भावाधिकरण वीर्य विशेषबस्त अधिकरणम जीवा अजीवा आद्य संभ समारंभ बारंबा योग उत्कारिता द्रुमत कषाय विशेष पौस्त्री स्त्रियश्च तुश्चेकरा निर्वंता निक्षेप संयोगी निसर्ग चतुर्वेदा परम तत्व प्रदोष न वामत्सर अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शन वर्णयो दुख शोक तापकस्य वद परिवेदना नामतम परो भयस्थान सदृश बुधत्वनुकंपांद सरांग संयमी योग शांति शौच समिति सदैव सग्न केवली श्रित संग धर्म देवरण वर्धन महोष्य कसाय दयाति व्रत परिणामश्च परित्रोहस्य बालारंभ परिग्रह तव नारकासुयुष माया तैर्यग्नस्य अल्पारंभ परिग्रहण मानुपस्य स्वभाव मार्दव निस्वल्त सर्वासम सराग संयमा काम निर्जरा बालपासी देवस्य सम्यक्त्वच योगी व्यक्ता विस्वाद चाक्षुभस्य नामन्नः तब्दि परितु शुभस्य दर्शन विशुद्धानि संपन्ता श्रीलवतेनि चारो अपक्षणि ज्ञान प्रयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत करण महार्द प्रवचन भक्ति रावक्ष्य परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्य समिति तीर्थंकरस्थ परात्मनिंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छेद नोद भावने न चेकौस्त्र तपर्दि योनि चैत्यनुशोक चोतरस्य विघ्नकरणंत्रायस्य इति तत्वागि में मोक्ष मार्गे छठो अध्याय। હવે સાતમો हिंसानुव्रत स्तोय ब्रह्म परिग्रहो विरतिवर्तम देश सर्वतो अण महित तस्यार्थ भावना पंच पंच पडाम्न गुप्ति मर्यादा अनिक्षेपण सामर्थ्य लोकी पान भोजन पंच क्रोध लोभ विरुत्व हास्य प्रत्याखानुविचि भाषण संपंच शून्यकार विमोचीवास परो परोधाकरण वैश्य शुद्धि स्वधर्म विसंदवा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तो हरंगा निरक्षिण पूर्वरत समस्त रुष्ट रस। હવે ડોક્ટર વીરસાગર જૈન આપણી સાથે જોડાયા છે તો આપણે એમની સાથે સ્વાધ્યાય કરીશું। પછી વેલકમ ડોક્ટર वीरसागर जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? जय जी, बस एकदम ठीक है। जय जिनेन्द्र, वेरी गुड। आप ठीक हैं? सब लोग सब अच्छे हैं। सब ने कमेटी की ओर से आपको बहुत आभार व्यक्त किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रवचन शुरू करें? हाँ, इसलिए मैंने आपको वेलकम किया। जैसे हाँ, ठीक है, शुरू करते हैं स्वाध्याय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। धर्म सर्व सुखाकरो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्यपरं सुरद्भवव्रतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं
हे धर्म मां पालय, हे धर्म मां पालय। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय, उत्तम तप धर्म की जय। हम सब 10 लक्षण महापर्व की आराधना कर रहे हैं और उसमें आज 7वां दिन है। आज उत्तम तप धर्म का क्रम है। अब तक हमने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य और उत्तम संयम धर्म का स्वरूप विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया था। अब आज हम उत्तम तप धर्म का क्या स्वरूप है इसको भली भांति समझेंगे और अपने जीवन में यथाशक्ति तप करने का पुरुषार्थ भी करेंगे। देखो, तप क्या होता है। एक तो ये सभी धर्म के लक्षणों में उत्तम शब्द लगाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच सबके साथ उत्तम उत्तम का अर्थ होता है बेस्ट क्वालिटी का। उत्तम का अर्थ है बहुत बढ़िया क्वालिटी का। उत्तम का बेस्ट क्वालिटी का कैसे होता है? जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तब बेस्ट क्वालिटी का होता है। उत्तम का अर्थ ये समझकर चल, सम्यक दर्शन के साथ कोई भी 10 के 10 धर्म सम्यक दर्शन के साथ हो तो उत्तम है, और सम्यक दर्शन के बिना हो तो वो बाल है। जैसे आपको पहले ही दिन समझाया था ना कि क्षमा, तो क्षमा 2 तरह की है, एक उत्तम क्षमा और एक बाल क्षमा, अज्ञानी की क्षमा। जैसे कोई दुकानदार अपने कस्टमर पर क्रोध नहीं करता, तो क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि उसको व्यापार करना है। क्रोध तो आया मगर वो क्रोध नहीं कर रहा है क्योंकि व्यापार करना है। मान लो कोई भी बात है, हम परिवार में भी कई बार क्रोध आया, मान लो पत्नी पर क्रोध आया पर हमने किसी भय के कारण नहीं किया, तो इसका नाम क्षमा नहीं है। क्षमा वो है जो सम्यक दर्शन के साथ होती है, वही क्षमा क्षमा है। वो जो सम्यक दर्शन के साथ संयम है वही संयम उत्तम संयम है। जो सम्यक दर्शन के साथ तप होता है उसी का नाम उत्तम तप है। तप माने क्या होता है? तप शब्द को अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलते तपना, तपाना। जैसे कोई भी चीज को तपाते हैं तो वो मजबूत होती है, उसमें कोई कमी हो, कच्चापन हो तो दूर होता है, उसमें क्वालिटी। जैसे सोना तपाते हैं, देखो यदि आप सोने के उदाहरण से तप का स्वरूप समझो जरा, कि जैसे जमीन में से जो सोना निकलता है वो सोने की उतनी कीमत नहीं है, लेकिन उस सोने को जब हम अग्नि में तपाते हैं, गलाते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, तब वो सोना मूल्यवान बन जाता है। ये तप की कीमत। हमारी आत्मा भी अनादिकाल से निगोद से जैसी निकली हुई है, उसको यदि हम तपाएंगे तो ये कुंदन जैसी, सोने जैसी बहुत मूल्यवान बनेगी। सोना अभी भी है लेकिन बिना तपा हुआ है। तपाने की बहुत मिट्टी का घड़ा होता है, जैसे वो अगर तपाओ नहीं तो मान लो कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया,
और घड़ा बना करके आपको दे दिया कि ले जाओ ऐसे ही, तो जैसे ही आप पानी भरेंगे वो सारा पिघल जाएगा, कच्चा पिघल जाता है। और यदि उसको वो अग्नि में तपाता है तो बाद में हम लाते हैं, खूब पानी भरते हैं, लेकिन वो फूटता नहीं है, कच्चा घड़ा फूट जाता है, लेकिन तपाया हुआ घड़ा फूटता नहीं है। तप से क्या फायदा है, अब आपको नोट करना चाहिए। ये सब प्रवचन सुन रहे हैं लेकिन याद भी रहना चाहिए। तप क्यों करते हैं, तप से क्या फायदा है, तप का क्या मतलब है, वो सब समझ में आना चाहिए। तप यानी तपाना, और तपाने से क्या होता है, वस्तु मजबूत होती है, उसमें जो कच्चापन है वो मिट जाता है, उसमें जो दोष है वो दूर हो जाते हैं। हम हर चीज, पानी को तपाते हैं तो क्या होता है, पानी औषध बन जाता है। गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी औषध बन जाता है। तो हम सब्जियां पकाते हैं, दाल पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, सब चीजें पकाते हैं ना। रोटी को इधर से भी पकाएंगे, इधर से भी पकाएंगे, जब सब पकाएंगे, दोनों तरफ से पकाते हैं तो रोटी में स्वाद उत्पन्न हो जाता है। कच्ची रोटी खाओ तो कच्ची रोटी में स्वाद नहीं है, लेकिन उस रोटी को पका दो तो स्वादिष्ट बन जाती। तो पकाने से उसमें रस आता है, उसमें क्वालिटी पैदा होती है। इसलिए एक बच्चे को तपाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, टीचर उसको पढ़ाता है, परिश्रम वो बालक भी करता है, तो इससे मजबूत होती है, हमें हमारी आत्मा शुद्ध होती है। सीधी भाषा में बोलो तो शुद्ध होती है। आत्मा को शुद्ध करना है तो आत्मा को भी तपाना पड़ेगा, आत्मा को भी तप चाहिए। तप का इतना बड़ा महत्व है कि हमारे आचार्यों ने तप को अलग से भी गिना। वैसे तो सब जगह ये लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। और एक तरह से चारित्र में तप गर्भित भी हो गया, लेकिन नहीं, बहुत ध्यान से देने की बात है। कितना महत्वपूर्ण है तप कि उन्होंने 3 की बजाय कहा नहीं 4 चीज समझो तुम। भगवती आराधना आदि ग्रंथों में कहा कि तुम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 ही मत समझो, 4 समझो। बोले क्या 4, क्या हमने तो आज तक 3 सुना, सब शास्त्रों में 3 बताया है, रत्नत्रय। बोले नहीं, 4 रत्न समझो। बोले 4 रत्न क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। देखो कितनी बड़ी बात कही, सम्यक तप। तप की बहुत उपयोगिता है। तप के बिना कर्म खत्म नहीं होते, तप से कर्म का पर्वत टूट जाता है। हमारी आत्मा पर जितने भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म चढ़े हुए हैं, वे तप करने से दूर हो जाते हैं, जल जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए तप का अपरंपार महत्व है। लेकिन फिर वही बात कि ये तप होता कैसा है, इसको जब तक हम सही से समझेंगे नहीं, तब तक हम तप कर नहीं पाएंगे। किसी भी रोटी को तपाना है तो उसकी एक कला है, नहीं तो जला देंगे। अगर तपाना नहीं आता होगा तो जला देंगे। सब्जी को तपाना, दाल को तपाना, दूध को तपाते हैं कि नहीं, पानी को तपा, तो इसका हमको एक कला है इसकी, कितना तपाना, कैसे तपाना। अगर हमने
कोई चीज हम तवे पर रख के तपाते हैं, कोई बिना तवे के रोटी को पहले हम तवे पे रखते हैं, बाद में तवा हटा के डायरेक्ट गैस पर रखते हैं। अगर पहले डायरेक्ट गैस पे रख दो तो बाद में तवे पे रखो तो तपेगी? नहीं तपेगी। तो तप का एक स्वरूप है। सोना कैसे तपेगा, रुई कैसे तपेगी, सब चीज की प्रोसेस अलग अलग है, सेम प्रोसेस नहीं है हर चीज की। जिस प्रोसेस से सोना तपाया जाता है उस प्रोसेस से दूध नहीं तपाया जाता, दूध तपाने की कला अलग है। तो ऐसे ही आत्मा को तपाने की कला भी अलग है, वो हमको समझनी है। आत्मा कैसे तपाया जाए, अगर हमने गलत तरीका जाना तो हम उसको तपाने की बजाय जला देंगे, नष्ट कर देंगे, दुख उठाएंगे। तो तप को इसीलिए शास्त्रों में दो तरह का कहा, एक सुतप, एक कुतप। बहुत बढ़िया बात है। तप दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं सुतप और एक को कहते हैं कुतप। कुतप क्यों कहा? कि जो नहीं जानेगा तपाना वो जला देगा चीज को, वो नुकसान कर देगा, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए तप का महत्व भी बहुत है, लेकिन वो कैसे है वो सब जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक तप करना असंभव है। ज्यादातर लोग तप के नाम पर कुतप कर रहे हैं, ज्यादातर लोग तप के नाम पर आत्मा को शुद्ध करने की बजाय आत्मा को तन को मन को आत्मा को शुद्ध करने की बजाय इनको जला रहे हैं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे कपड़े पर प्रेस करना हो तो कपड़े पर प्रेस करना वो कैसे पॉसिबल है? अगर नहीं आता होगा तो हम जला देंगे। इस कितना उस पर टेम्परेचर देना है, कैसे देना है, ये सब एक कला है। तो तप का वर्णन हमारे आचार्यों ने हजारों गाथाओं में अलग से किया और बहुत डिटेल वर्णन है। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है। मैं हमारी यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का लेक्चर दिया हूं एक दफे, 2 घंटे उत्तम तप के जैन दर्शन में तप का क्या स्वरूप है। अभी अगर मैं आपके पास वहां होता न्यू जर्सी में तो मैं आपसे कहता एक ब्लैक बोर्ड लेकर आओ और उस ब्लैक बोर्ड पर मैं बहुत अच्छे से टू द पॉइंट, जैसे यूनिवर्सिटी में हम प्रोफेसर है तो वहां पढ़ाते हैं ना, वैसा आपको मैं समझाता। तप का बहुत गज, दूसरे धर्मों में तप का क्या स्वरूप है और जैन धर्म में और दूसरे धर्म में तप का क्या फर्क है, वो सब अगर हम विवेक से नहीं करेंगे। लोग कठोर तप करने का नाम अच्छा तप समझते हैं। कठोर तप की चिंता मत करो। देखो यहाँ क्या लिखा है, उत्तम तप लिखा है, कठोर तप नहीं लिखा। लोग पंचाग्नि तप, और धर्मों में तो काया को कष्ट देने का नाम तप है। पंचाग्नि तप तपो, ऐसे करो वैसे करो, उसको ही तप समझते हैं कि ओहो इसने और कठिन किया, इसने और टेढ़े टेढ़े व्यायाम कर लेने का नाम ही तप समझते हैं। पर जैन दर्शन का तप कोई अद्भुत चीज है, उसको समझना मजाक बात नहीं है। उसके लिए थोड़ी स्टडी करना जरूरी है, थोड़े नोट्स बनाना जरूरी है, तब जाकर के उसके परिभाषा क्या, उसके भेद क्या, ये सब हमको समझ में आना चाहिए। अभी थोड़ा डिटेल करेंगे, लेकिन आपको अभी तप की परिभाषा बता देता हूं, आप याद रखना। अभी 1 घंटा काम आएगी हमारे, बार बार हमेशा आपको काम आएगी। तप किसे कहते हैं? जैन धर्म में
तप किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा याद रखना, इच्छा निरोधस्तपः, इच्छा निरोधस्तपः, इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। और ये जो निरोध शब्द है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निरोध शब्द में बहुत अर्थ है। इच्छा के दमन को तप कहते हैं ऐसा नहीं लिखा है। इच्छा के दमन में और इच्छा के निरोध में बहुत अंतर है। देखो क्या अंतर है। जैसे समझो मुझे भोजन करने की इच्छा हो रही है, चलो मैं भोजन करूं, लेकिन मैं सोचता हूं नहीं 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 अभी नहीं जाना, और मैं अपनी इच्छा का दमन कर, मुझे कुछ खाने की, पीने की, जाने की, पांच इंद्री के विषय भोग की इच्छा हो रही है, और उस इच्छा को मैंने दबा दिया। दबा दिया, दबाने का नाम तो है इच्छा के दमन, इच्छा का दमन। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि इच्छा के दमन को तप कहते हैं। तो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। बहुत गजब की बात है। निरोध कैसे होगा, देखो दमन और निरोध दोनों का अंतर समझाता हूं। जैसे मुझे अभी भोजन की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं किचन में नहीं जा रहा, रसोई में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, नहीं 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 जाना, आज मुझे व्रत करना है, या मुझे भोजन नहीं मिलेगा, पत्नी डांटेगी, माँ बाप डांटेंगे, कोई डर है, तो नहीं जान। अपनी इच्छा को दबाना, ये क्या है, ये इच्छा का दमन है। और मैं यहाँ पर ऐसे स्वाध्याय कर रहा हूं बैठ करके अपना और स्वाध्याय करते करते मेरा स्वाध्याय में मन लग गया बहुत तेज, और मैं भूल गया, भोजन करना ही भूल गया, मुझे भोजन की याद ही नहीं आई। इसका नाम है इच्छा निरोध। निरोध माने निरोध पाप नहीं है। देखो एक तो होता है संतान का पैदा होना। एक बार जैसे कोई महिला गर्भवती हो जाए और फिर बच्चे को मारे तो पाप है, और गर्भवती ही ना हो तो पाप नहीं है। बस ऐसे ही है, जैसे कोई महिला गर्भवती हो जाए और फिर दवाई लेकर बच्चे को मारे तो ये पाप है बहुत बड़ा। लेकिन वो ऐसा आचरण करे कि उससे वो कभी गर्भवती हो ही नहीं, अगर उसे नहीं बच्चा चाहिए तो इसका नाम है निरोध। ऐसे ही हम जब स्वाध्याय में, पूजा में, धर्म ध्यान में हम दिन भर पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, और हमको कोई इच्छा पैदा ही नहीं हुई खाने की, पीने की, तो इसका नाम है इच्छा निरोध। और तप की परिभाषा यही है, याद रखना। क्या बताई मैंने तप की परिभाषा, सबको याद रहना चाहिए। इच्छा निरोधस्तपः, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अभी कैसे है वो मैं अब आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले अपन रोजाना की तरह दयानंद राय जी ने जो उत्तम तप धर्म की पूजा लिखी है उसका अर्थ मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आज मेरे पास बहुत टॉपिक है, क्योंकि तप धर्म 12 प्रकार का होता है। मुझे वो 12 प्रकार आपको समझाने हैं। और सही पूछो तो जैसे अपन एक एक धर्म पर बोल रहे हैं ना एक एक घंटा, तो वो 12 तपों पर बोलने के लिए मुझे 12 घंटे चाहिए। 12 घंटे में मैं आपको 12 तप समझा सकता हूँ अच्छे से, लेकिन अभी अपन एक ही घंटे में, आधा घंटे में सब 12 तपों का स्वरूप समझने वाले हैं। आप सब जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना,
तब समझ में आएगी, इधर उधर ध्यान रहेगा तो समझ में नहीं आएगी बात। चलो देखो, तप धर्म का पहले मैं आपको छंद सुनाता हूं, कितना अच्छा है। तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। सुर राय, सुर माने देवता, देवताओं का राजा, देवताओं का राजा माने इंद्र। इंद्र भी तप को चाहता है, इंद्र के पास में सब कुछ है मगर तप करने का मौका नहीं है, इसलिए इंद्र भी जिस तप के लिए तरसता है। करम शिखर को वज्र है, शिखर माने बहुत ऊंचा पर्वत, पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़, शिखर जी कर्म रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए ये वज्र के समान है। ये जो तप है इसको इंद्र भी चाहते हैं और ये तप कर्म रूपी पहाड़ को तोड़ने के लिए वज्र के समान है। द्वादश विधि सुखदाय, और ये जो तप है वो 12 प्रकार का होता है और सुखदायक होता है। गजब की बात लिखी है। तप कैसा होता है? अब अपने मन, यदि हमको तप दुखदायक लग रहा है तो समझो वो कुछ और होगा। वो तप, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मिश्री खाओ, तो आपने मिश्री खा के मुझसे कहा वो तो खारी लगी, वो तो खारा खारा लगा, सॉल्टी। तो हमने कहा वो खारा कैसे लगा? मिश्री तो स्वीट होती है, सॉल्ट नहीं होती है, वो मीठी होती है, वो तो मीठा लगना। बोले हमने, आपने कहा था मिश्री खाओ, हमने मिश्री खाई और वो तो हमको सॉल्टी लगी। तो आपको सॉल्टी लगी इसका मतलब है आपने मिश्री नहीं खाई, आपने मिश्री की बजाय नमक खाया। मिश्री खाओ तब मीठी लगेगी। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि तप कैसा होता है? सुखदायक होता है, आनंददायक होता है। देखो, धर्म वो है जो सुख दे, धर्म वो नहीं है जो कष्ट दे, दुख दे, उसका नाम धर्म नहीं है। जो अभी हमको आनंदित करे, जो आज फल दे, आज सुखी करे, उसका नाम धर्म। और जो बाद में सुखी करे उसका नाम कर्म। हमको तप का फल बाद में अच्छा मिलेगा ऐसे नहीं, हमें आज अच्छा फल मिलना चाहिए, तभी वो सही उत्तम तप है, सम्यक तप है। नहीं तो तप अच्छा नहीं है। तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है। वज्र होता है बहुत बड़ा मजबूत हथियार, वज्र से पहाड़ टूटते हैं। तो तप है वो वज्र के समान है, पर्वत को चकनाचूर कर देता है। 12 प्रकार का होता है, सुखदायक होता है और हम सबको शक्ति सम। देखो फिर लिखा, अपनी शक्ति के अनुसार। जैन धर्म जबरदस्त है, उसमें जबरदस्ती नहीं है। जैन धर्म जबरदस्त है पर जबरदस्ती का नहीं है। जबरदस्ती मत करो, अपने साथ अन्याय नहीं करो, अपनी निज सकति सम, शक्ति के समान करो। उत्तम तप सब माही बकान, करम शैल को वज्र समान। बस्यो अनादि निगोध मजारा, भूविकला त्रय पशुतन धारा। देखो दोबारा भी लिखा, उत्तम तप, 10 धर्मों में जो उत्तम तप है वो सब में प्रधान है। और प्रधान ही नहीं, कर्म शैल को वज्र समाना, कर्म रूपी पर्वतों के लिए वज्र के समान है। बस्यो अनादि निगोध मजारा। अब हमको समझा रहे कवि दयानंद राय जी, 400 साल पहले सुंदर पूजा लिखी, देखो तो सही कि
अरे भैया, तुम अनादि काल से निगोद में रहते थे, वहां से निकले तुम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, क्या 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 तुम बने। फिर तुम 2 इंद्री बने, 3 इंद्री बने, 4 इंद्री बने, पशु बने, तिर्यंच बने, क्या क्या कहाँ कहाँ 84 लाख योनियों में घूमे। और घूम घाम के अब आज धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आव निरोगता, श्री जैन बानी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगता। लेकिन तुम आज मनुष्य बन गए, मनुष्य शरीर मिल गया। देखो, कितनी गोद कितनार की पूजा में पढ़ते हैं ना, कितनी गोद कितनार की, कित तिर्यंच अज्ञान, धन्य आज मानुष भयो, पायो जिनवर थान। सोचो भैया, सोचो, सोचने की जरूरत है। ये बात जो सोचेगा, जो जो डूबेगा, डुबकी लगाएगा, उसी को हीरे मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? तुमने मनुष्य शरीर जो बहुत दुर्लभ है वो प्राप्त किया, उत्तम कुल में आए। अरे आयु मिली, लोग बचपन में मर जाते हैं, कोई गर्भ में मरता है, छोटे छोटे लोग मर जाते हैं। आज हमको आपको आयु भी मिली है, शरीर स्वस्थ है, कोई अंधा हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है, हाथ पैर नहीं होते हैं, विकलांग बन जाते हैं, किसी की किडनी खराब, किसी का लीवर, क्या 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 रोग शरीर में होते हैं। बोले तुम सब कुछ अनुकूलता मिली है, तुम्हें ये जिनवाणी के प्रति रुचि हुई है, तत्व ज्ञान हुई है, हुआ है। अभी देखो, आप इतनी दूर वहां पहुंच गए, फिर भी आपको कितना बढ़िया मंदिर मिला है। आप भारत छोड़ करके अमेरिका पहुंचे और मंदिर नहीं मिलता, तो वहां आपको मंदिर मिला। कितना सुंदर, कितना बढ़िया, कितना भव्य आपका मंदिर है, कितने अच्छे भगवान हैं, देखो क्या प्रतिमाएं हैं। दर्शन करता हूं तो मन लगा ही रहता है। इतना अच्छा आपका मंदिर है, सब कुछ आपको मिला, कोई कमी नहीं है। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे। सब कुछ मिला आपको, जो बहुत दुर्लभ था, अत्यंत दुर्लभ चीज थी, ऐसा सब कुछ तुम्हारे लिए सुलभ हो गया। दुर्लभ माने कठिनता से मिलने वाला, सुलभ माने आसानी से मिल गया है। तो ऐसे में भैया विषय कसाय का त्याग करो। हमने अनादि काल से बहुत विषय कसाय सेवन किए, पर कभी पेट भरा नहीं। ये हमने चक्रवर्ती बने पिछले जन्मों में, इंद्र बने, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई, इनसे कभी इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए हे भाई, विषय कसाय छोड़ो। पहले बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार, वारिसेन राजकुमार, हर अष्टमी और चतुर्दशी को सुदर्शन सेठ, इतना बड़ा धनाढ्य, लेकिन सब विषय कसाय से विरक्त होकर अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर पूरी रात खड़े होकर तप करते थे। तो हमको भी तप करना चाहिए। देखो, अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे। नर भव अनुपम कनक, घर पर मणिमयी कलसाधरे। जीवन पर कनक माने सोना, ये जो मनुष्य जीवन है, समझ लो आपने सोने का घर बना लिया, सोने का घर बना लिया ये मनुष्य
शरीर मिल गया तो, लेकिन अभी सोने का घर बनाया है, घर सोने का। हम मंदिर बनाते हैं ईंट पत्थर का, तो बाद में मंदिर के ऊपर कलश लगाते हैं सोने का। अब घर ही, मंदिर ही सोने का बन गया, तो कलश किसका लगना चाहिए? रत्नों का, मणियों का। तो कहते हैं कि यदि आप अब तप करो तो समझ लो आपने इस मनुष्य जीवन में इस सोने के घर पर आपने हीरे का कलश स्थापित कर दिया। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से इस बात को समझना है कि उत्तम तप का क्या स्वरूप है। अब इसमें लिखा था तप 12 विधि सुखदाय, तप 12 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में मैं आपको 20-25 मिनट में समझाता हूं, बहुत जरूरी है। 12 प्रकार के तप, जिनको याद है वो बहुत अच्छा, नहीं है वो याद करो। 12 प्रकार के तप कौन कौन से होते हैं? पहले समझो तप 2 प्रकार के होते हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप माने जो बाहर में दिखाई देता है, बाहर में करते हैं, और अंतरंग तप माने जो अंदर आत्मा में मुख्यता से होते हैं। ये बात याद रखना कि बहिरंग में भी अंतरंग है और अंतरंग में भी कुछ बहिरंग है। दोनों का अंतरंग, अंतर की जिसमें प्रधानता हो, बाहर की गौणता हो, वो अंतरंग तप है। और जिसमें बाहर की क्रिया प्रदान हो, अंतर का गौण हो, वो बहिरंग तप है। समझ में आया? ऐसे मत समझना। और अभी उदाहरण दिया ने रोटी का, जैसे रोटी इधर से भी तपाते, इधर से भी, दोनों तरफ से तपाते, तब वो बढ़िया बनती। ऐसे ही दोनों तप करना जरूरी बताया है शास्त्र। अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप व्यर्थ रह जाता है, और बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप हो नहीं पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी मैं सब बताऊंगा पर ये लाइन याद करो। अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप व्यर्थ रह जाता है, और बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता है। कैसे? एक उदाहरण देखो। जैसे हमको दाल बनाना है, हमको दाल पकाना है, दाल तपाना है, दाल पकाना है, चावल पकाना है, कोई चीज पकानी है, तो हम कैसे पकाएं? दाल को कैसे पकाना है? तो दाल को या चावल को पकाने के लिए हमें कुकर में डालना पड़ेगा, और कुकर को गैस पर रखना पड़ेगा। तो हम किसको तपा रहे हैं? डायरेक्ट देखो, बाहर से देखो। यदि बाहर से देखो तो कोई देखेगा ये तो कुकर तपा रहे हैं। हम भगोने में हमने चावल रखा, बर्तन में, तो हम बर्तन तपा रहे हैं या चावल तपा रहे हैं? सोचो, हम क्या तपा रहे हैं? चावल तपा रहे हैं, दाल तपा रहे हैं, या बर्तन तपा रहे हैं? कोई के चावल तपा रहे। तो मैं पूछता हूं, तो बर्तन क्यों तपा रहे हो? बर्तन को हटाओ, उठा के फेंक दो, बर्तन को फेंको। क्या बिना बर्तन के दाल बन सकती है? नहीं बन सकती। बिना बर्तन के दाल नहीं बनेगी, बर्तन में ही बने। तो बर्तन ही तपा लो, अकेला अकेला बर्तन तपाओ, उसमें दाल मत डालो, चावल मत डालो, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। बर्तन पकाना है, लेकिन बर्तन नहीं पकाना है, उसमें अंदर दाल चावल पकाना है, रोटी सेकना है, मगर तवे के बिना रोटी नहीं सिकेगी। और खाली तवा सेकोगे तो रोटी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा। तो अंतरंग और बहिरंग की मैत्री है। जिनवाणी में
द्रव्य क्रिया भी कही है, भाव क्रिया भी कही है, एक को व्यवहार कहा है, एक को निश्चय कहा है। जैसे दो आंखें हमारे हैं, ऐसे जिनवाणी की दो आंखें, और इन दोनों का सुमेल जीवन में होता है। धर्मात्माओं के दोनों, ऐसा नहीं होता कि बाहर में तो कुतप है और अंतरंग में सुतप है, ऐसा नहीं होता है। दो होता है, दोनों होता है, दोनों का सुमेल बैठता है, तभी वो बढ़िया होता है। इसलिए इसको अच्छे से समझना है। अब हम 12 तपों के मैं आपको नाम सुनाता हूं। पहले बहिरंग तप सुनो, 6 भेद, 6 प्रकार के बहिरंग तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप। क्या क्या नाम है? अनशन, पहले तप का नाम है अनशन। अब 1 घंटे तक हमको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि अनशन माने क्या होता है। अनशन को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते उपवास, चतुर्विध आहार का त्याग करना। अब देखो दुनिया में दूसरे धर्मों में लोग फास्ट करते हैं, लेकिन कैसा फास्ट करते हैं? वो सब लेते हैं, सब अनाज दाल रोटी छोड़ देते हैं, बाकी खूब फल खाते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, काजू बादाम खाते हैं, चाय पीते हैं, सब काम करते, दिन में 10 दफे चाय पी लेते हैं और बोलते हैं हमारा आज फास्ट है। लेकिन जैन धर्म कितना महान है। जैन धर्म में उपवास किया है तो आज पानी की एक बूंद भी नहीं, देखो तो सही कैसा होता है, चतुर्विध आहार का त्याग। लेकिन तो ऐसे बहिरंग क्रिया में भी जैन धर्म की बात अलग है, निराली है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें अंतरंग में शुद्धि भी जरूरी बताई है हर क्रिया की। जैसे उपवास का वर्णन पढ़ो आप रत्नकरंड श्रावकाचार में, कितना बढ़िया 8 श्लोकों में उपवास का स्वरूप लिखा है रत्नकरंड श्रावकाचार में। और ये लिखा है उपवास के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। उपवास के कुछ डूज है, कुछ डू नॉट्स है, हमको उनका भी पालन करना चाहिए, तभी हम सही उपवास। हमने मान लो आज उपवास किया और उपवास करके दिन भर हम टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सो रहे हैं खाली, तो इसका नाम उपवास नहीं है। अगर उपवास किया है तो आज ज्यादा धर्म ध्यान करना चाहिए, खूब स्वाध्याय करो, सामायिक करो, पूजा पाठ करो, आलस्य छोड़ो, श्रृंगार छोड़ो। ये सब बहुत से लोग सोचते हैं आज उपवास है तो हम घर की सफाई कर लेते हैं, ये उपवास नहीं है। ऐसे बहुत बात, मैं एक एक के बारे में आपको 5-5, 7-7, 10-10 मिनट बताऊं। 10 मिनट एक को लूं तो 12 को बताने में 2 घंटा लग जाएगा, पर ये समझना जरूरी है। पहले तप का नाम है अनशन। उपवास किसे कहते हैं इस पर आप लोगों को सोचना है। दूसरा तप है अवमोदर्य। अवमोदर्य का नाम है ऊनोदर। ऊनोदर माने, ऊन माने कम, उदर माने पेट, अपने भोजन को भूख से कम खाना। इसको हम हमारी लैंग्वेज में एकासन बोलते हैं। अल्पाहार, तो दिन में 1 बार अल्पाहार करना, वो ऊनोदर है। अभी एक और खास बात है इसमें कि ये जो 12 तप है ये सभी एक से बढ़कर दूसरा बड़ा है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा बड़ा है। तो अब यहाँ देखो गजब की बात, पहला था उपवास और दूसरा था ऊनोदर, तो दूसरा बड़ा है कि पहला? हमको तो पहला बड़ा लगता है, लेकिन जिनवाणी कह रही है कि दूसरा बड़ा है। दूसरा क्यों बड़ा है? क्योंकि तप की परिभाषा याद करो, क्या थी तप की परिभाषा? इच्छा निरोध तप। इच्छा के निरोध का नाम तप है,
और दूसरे में इच्छा का निरोध ज्यादा हो रहा है। पहले में तो क्या करना है, हमको बिल्कुल रसोई में जाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, लेकिन दूसरे में हमको रसोई में जाना है, खाना खाने बैठना है, खाना खाना शुरू करना है और आधे पेट उठ जाना है। इसमें इच्छा निरोध ज्यादा है। बहुत दफे आपने देखा होगा कि हम कहते हैं आज खाना नहीं खाना, रहने दो, लेकिन फिर वो खाने बैठ जाते हैं और खाने बैठते हैं तो फिर पूरा खा लेते हैं, हम फिर 4 रोटी खा लेते हैं। वो क्या हुआ, तो बीच में उठने में जरा और फोर्स लगता है, इच्छा का विशेष निरोध होता है, इसलिए दूसरा तप बढ़ा। अनशन, अवमोदर्य, तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब है कि उसमें भी कुछ मर्यादाएं कर लेना, कुछ तरह तरह के कोई और भी नियम ले लेना, संख्या निश्चित कर लेना। वृत्ति परिसंख्यान, परि माने लिमिट, संख्याओं की और वृत्ति की लिमिट कर लेना, उसको मर्यादित कर। मैं 2 ही चीज खाऊंगा, 1 ही चीज खाऊंगा, बस 2 ही खाऊंगा, 3 ही खाऊंगा, ये वृत्ति परि, ऐसा मिले तो खाऊंगा, ऐसा मिले तो खाऊंगा, तो ये वृत्ति परिसंख्यान और भी विशेष इच्छा निरोध है, इसलिए महान है। फिर है रस परित्याग। रस परित्याग में भी लोगों को बहुत गलत फहमी है। रस परित्याग, एक एक दिन में एक एक रस का त्याग किया जाता है। कोई कोई लोग ऐसी अज्ञानता करते हैं कि परमानेंट जीवन भर के लिए छोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। कोई कहता है मैंने जीवन भर के लिए नमक का त्याग किया, जीवन भर के लिए घी का त्याग किया, तो ये ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप जीवन, ये तप नहीं है। तप में कहा कि सोमवार को ये रस छोड़ो, मंगल को एक दिन में एक रस छोड़ो। क्यों? आप जब एक हफ्ते में एक दिन छोड़ेंगे तो 2 काम होंगे, एक तो इच्छा का निरोध होगा और दूसरा शरीर में कमी नहीं होगी। अगर आप रोजाना, मान लो मैंने हमेशा के लिए नमक छोड़ दिया, तो 2-4 दिन तो मुझे भोजन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में मुझे उसकी आदत हो जाएगी और मुझे बिना नमक का भोजन ही अच्छा लगने लगेगा। इच्छा का निरोध कहाँ होगा बताओ? और शरीर में भी नमक की कमी हो जाएगी, सोडियम कम हो जाएगा। इसलिए कहा कि नहीं, ऐसे मत करो, केवल रविवार को एक दिन नमक छोड़ो, बाकी दिन आप लो, तो आपके शरीर में नमक की भी कमी नहीं होगी। और जब रविवार को छोड़ोगे तो आपकी जबान की परीक्षा भी हो जाएगी कि अभी रोज रस। तो रस परित्याग, विविक्त सही आसन, विविक्त माने अकेले, अकेले रहना, उठना बैठना, ये भी तप है। बहुत से लोगों का मन नहीं लगता, अकेलापन काटने को दौड़ता है। अरे अकेलापन तो भाग्य से मिलता है। मान लो आज घर पर कोई नहीं है, तो ये अब मैं सोचता हूँ आज कोई नहीं है, चलो दोस्तों को बुला लेता हूँ, उनके घर चला जाता हूँ, ये पागलपन है। अरे आज घर में कोई नहीं है, आज बढ़िया अच्छे स्वाध्याय करो, धर्म ध्यान करो, सामायिक करो, कितना बढ़िया दिन है आज। लेकिन लोग कभी कोई अकेलापन मिलता भी है तो भी उसको फिर समाज में बना देते हैं, ये ठीक नहीं है। विविक्त सय्यासन भी एक बहुत बड़ा तप है, इसमें भी बहुत सारी बात है, मुझे समय नहीं है बताने का। विविक्त सय्यासन। फिर काय क्लेश। काय क्लेश का मतलब काया को क्लेश देना नहीं, काय क्लेश तप का मतलब है काया में कोई क्लेश भी हो
तो धर्म ध्यान से विचलित नहीं होना, इसका नाम कायिक क्लेश। जैसे समझ लो हम बैठे हैं, तो हम बैठे बैठे मान लो हमको पैर में कुछ चुभ रहा है, कोई दर्द हो रहा है, तो भी हमने कहा नहीं, अब हम अभी 1 घंटा बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तो ये है कायिक क्लेश। तो ये 6 प्रकार के बहिरंग तप है: अनशन, अवमोदय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और कायिक क्लेश। और एक से दूसरा बड़ा है। अब 6 हो गए, अब 6 अंतरंग सुनो, माने 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12। अब ये तप आपको बताते हैं। पहला तप माने 7वां तप, प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त माने अपने चित्त में कोई अपराध भाव, दोष भाव, हिंसा, झूठ, चोरी का भाव पैदा हुआ हो तो उसकी निंदा करना, उसकी आलोचना करना, उसको छोड़ने का प्रयास करना, ये बहुत बड़ा तप है। अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते हैं लोग। अपने दोष को स्वीकार करना और फिर उसे छोड़ना, अपने दोष को स्वीकार करना ही बहुत बड़ी वीरता है, और उसे छोड़ देना वो तो महावीरता है। इसलिए दोषों को स्वीकार करना और उनको छोड़ने की कोशिश करना, इसका नाम प्रायश्चित्त। ये महान तप है, बहुत बड़ा तप है। फिर है विनय तप। विनय तप के बारे में लोग कुछ नहीं जानते। 1 घंटा चर्चा होना चाहिए विनय तप पर, कि विनय माने क्या, विनय के भेद क्या, विनय के संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या, वो सब जब हमको स्पष्ट होगा तब हमको विनय तप का स्वरूप सही समझ में आएगा। विनय माने हम आदर भाव, सम्मान, आदर। किसका आदर? यहाँ विनय तप में किसके आदर की बात है? बहुत से लोग समझते हैं माता पिता की विनय, गुरु की विनय। अरे वो टॉपिक यहाँ नहीं है, वो टॉपिक अलग है। माता पिता का विनय वो सब लौकिक बातें हैं। वो ये जो 10 धर्मों में जो विनय तप है उसमें माता पिता कहाँ से आ गए? ये तो विनय तप का स्वरूप समझो। सम्यक दर्शन विनय, सम्यक विनय 4 तरह की है: सम्यक दर्शन विनय, सम्यक ज्ञान विनय, सम्यक चारित्र विनय और उपचार विनय। माने जिसके पास सम्यक दर्शन है उसकी विनय करना, वो उपचार विनय। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के प्रति जो हमारे मन में बहुमान का भाव है, वास्तव में उसका नाम है विनय तप। कहीं भी कुगुरु कुदेव को नमस्कार करना नहीं, विनय होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, तो इसका नाम विनय। आप जानते हो जैन धर्म में विनय नाम का तप भी है और विनय नाम का एक मिथ्यात्व भी है। किसी को भी मिथ्या दृष्टि को कहीं भी कुगुरु कुदेव को नमस्कार करना, वो विनय नाम का मिथ्यात्व है, तप नहीं है। इसलिए ये हमको ठीक से समझना है विनय के बारे में। प्रायश्चित्त हो गया 7वां तप। 8वां तप हो गया विनय। 9वां तप है वैयावृत्य। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य। वैयावृत्ति माने कोई जो मुनि महाराज धर्मात्मा उसके परिणाम किसी वजह से धर्म में नहीं लग रहे हो तो उसको लगाना, उसका स्थितीकरण करना। ये वैयावृत्य एक तरह से वो है जिसको हम 8 अंगों में स्थितीकरण कहते हैं। उसको प्रेम से बात करके, सेवा करके, कैसे भी करके, मधुर बोल के, जो उपदेश देके, उसे जरूरत पड़े तो अच्छी बात सुनाओ, जरूरत पड़े तो पैर दबाओ, जरूरत पड़े तो सिर दबाओ, जो करना पड़े, पर उसके परिणामों में फिर से धर्म भावना जगा देना, इसका नाम है वैयावृत्ति।
धर्मात्मा के मन में यदि कमजोर धर्म हो रहा हो तो उसे फिर से मजबूत बना देने का नाम है वैयावृत्य तप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय। और ये देखो 10वां नंबर का तप है स्वाध्याय। बहुत उच्च कोटि का तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय तप का देखो कितने लोग स्वाध्याय करते नहीं, और कोई स्वाध्याय करने वाले को तपस्वी मानता नहीं। अभी आपको एक बात मुझे ये कहना है इम्पोर्टेंट, कि देखो पहले नंबर का तप है उपवास, और 10वें नंबर का 10th नंबर का है स्वाध्याय। कितना बड़ा तप है। स्वाध्याय परमम तपः। आपने लाइन सुनी होगी, लिखवा दो उसको मंदिर में। स्वाध्याय अपने घर में लिखो सब। स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप कहा। क्यों? लेकिन हमारी समाज में क्या चल रहा है, कोई उपवास करे तो उसका जुलूस निकालते हैं, उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। वो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका हमको सम्मान नहीं करना। जो लोग, मान लो कोई आदमी 10 दिन का उपवास करते हैं, तो हम 10 दिन बाद क्या करते हैं, उन सबको हम कितना रेस्पेक्ट देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको सब हम सबको उत्साहित करते हैं ना, जुलूस निकाल। तो उससे क्या होता है कि समाज में और उपवास करने वाले तैयार होते हैं। अगले साल, इस साल 4 ने किया, अगले साल 6 हो जाते हैं लोग उपवास। आप उपवास को प्रोत्साहित करते हैं तो उपवास करने वाले बढ़ते हैं। आप स्वाध्याय को प्रोत्साहित करो तो स्वाध्याय करने वाले बढ़ेंगे। स्वाध्याय से ही हमें आत्मा का ज्ञान होता है, स्वपर विज्ञान, भेद विज्ञान होता है। ज्ञान बिना क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। कभी स्वाध्याय पर हमको 1 घंटा चर्चा करनी है। एक दिन आपके साथ कभी स्वाध्याय परमम तपः इस विषय पर किसी दिन 1 घंटा आपसे के साथ मुझे चर्चा करनी है। स्वाध्याय क्या होता है, कैसे करना चाहिए, उसमें कैसे मन लगे, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, कौन ग्रंथ बढ़िया है, शुरुआत कहाँ से करे, ये सब मैं आपको कभी डिटेल में समझाऊंगा। पर देखो, जैन धर्म, किसी भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे, हमको स्वाध्याय स्वयं करना पड़ेगा। हमको जीव क्या, शरीर क्या, सब बातें समझनी पड़ेगी, तभी हमको असली लाभ होगा। इसलिए स्वाध्याय बहुत ही महान तप है। अज्ञान से बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं है। समंत भद्राचार्य ने लिखा है स्वयंभू स्तोत्र में कि हमको संसार में कोई चीज शीतलता नहीं दे सकती, हमको कोई भी चीज सुख शांति नहीं दे सकती है, सिर्फ स्वाध्याय ही हमको शांति दे। देखो, ज्ञान किया हो, स्वाध्याय किया हो तो जंगल में भी मंगल है, और अगर स्वाध्याय नहीं किया हो तो महल में भी दंगल है। जिसके पास में ज्ञान है, स्वाध्याय है, वो कंगाल हो तो भी माला माल है। जिसके पास में स्वाध्याय नहीं है, वो कितना ही पैसे वाला हो पर वो कंगाल है। स्वाध्याय की महिमा कोई कह नहीं सकता। बहुत रोज नियम लेना, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जैसे रोज मंदिर की प्रतिज्ञा करते हैं, आप सब अपने अपने मंदिर में, आपके घरों में भी मंदिर है, छोटे छोटे चैत्यालय, सब में आप जिनवाणी स्वाध्याय विराजमान करो ग्रंथ, और रोज थोड़ी देर स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र की किताब भेजी ना आपको, 10 लक्षण में तो जरूर पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो वो सब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। स्वाध्याय 11वां तप का नाम है
व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग माने कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग माने काया का त्याग। तो काया का त्याग माने शरीर का त्याग नहीं, शरीर से ध्यान हटाने का त्याग, ध्यान हटा लेना, ध्यान का त्याग। शरीर के प्रति जो हमारा ध्यान है उसको हटा लेना, यही कायोत्सर्ग है। जो अपन करते हैं ना कायोत्सर्ग, कायोत्सर्गम करोम्यहम, तो ये 11वां तप है। शरीर से ध्यान हटाना, अपना ध्यान अपनी आत्मा में लगाना। और 12वां तप है ध्यान। ध्यान भी बहुत गजब का तप है, जो हम अपने सब प्रकार के मोह राग द्वेषों से उसमें ऊपर उठ जाते हैं। ध्यान अगर लगातार 48 मिनट कोई कर ले तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है। ये ध्यान की अपरंपार महिमा है। तो ऐसा बहुत ही बढ़िया ये उत्तम तप का विवेचन है, वर्णन है। पर मैंने आपको शॉर्ट में सब धीरे धीरे समझाया है। और सब लोग इसको शांति से सुनो, दोबारा सुनो। सब दो एक एक बात सुनने से काम नहीं चलता, उसको दोबारा सुनना जरूरी है, तब जाकर के ये सब बातें अच्छे से समझ में आएगी। आप सब बहुत बढ़िया तरीके से 10 लक्षण धर्म की आराधना कर रहे हो, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। सब बहुत धर्म ध्यान करें, सबकी बहुत धर्म वृद्धि हो। मैं इसी भावना के साथ आज उत्तम तप धर्म की बात पूरी करता हूँ। आज का जाप है ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। जय। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रवचन हाँ, हुआ और बहुत अच्छी अच्छी बात आज समझ में आई। उपवास हाँ, उपवास, एक हाँ, टाइम का भोजन। अभी हाँ, कल कल पारुल बेन का जो क्वेश्चन था वो जवाब हाँ, आप। हाँ, हाँ, वो उत्तर दे दूं, समय है? यस यस, हमारे पास समय है, आपके पास है तो ठीक हम। ठीक। देखो, पारुल बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 4 बात लिखी है उन्होंने। तो क्या क्या 4 बात लिखी है? एक बात तो उन्होंने ये बहुत अच्छा लिखा है, हमको उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि आपकी शैली बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से हमको समझा रहे हो, हमको आनंद आ रहा है। उन्होंने लिखा कि आपने जो बॉडी और सोल का भेद विज्ञान हमको समझाया वो हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसे लिखा है उन्होंने। तो उनको ये बात समझ में आई और उन्होंने हमको अच्छा कहा, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यही जैन धर्म का असली सार है, बॉडी और सोल का भेद विज्ञान। शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये बात जैन धर्म का सार है। इसलिए इस पर उनका मन लगा, सबका ध्यान जाना चाहिए। ये सब 10 धर्मों की आराधना एक में सब हो जाएगी। अगर हम शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर लेंगे तो क्षमा, मार दो, हट जाओ, शौच सब हो जाएगा, 10 धर्म हो जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि आपने कहा कि मोक्ष की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, पर हम तो पूजा में बोलते हैं मोक्ष फल प्राप्त है, सारे शास्त्रों में लिखा है मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष में ही सुख है। सब जगह तो लिखा है, पूजा में भी हम मोक्ष के लिए फल चढ़ाते हैं। और आपने अपन ने उत्तम शौच धर्म के दिन कहा था मैंने कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो देखो क्या होता है, अब उत्तर ध्यान से सुनो आप। क्या होता है, पहले और इच्छाओं को मिटाने के लिए, दुनिया की जो और दुनियादारी की इच्छाओं को मिटाने के लिए मोक्ष की इच्छा कराते हैं। मोक्ष की इच्छा होती है, उससे सब दूसरी इच्छा मिट जाती है।
लेकिन फिर बाद में मोक्ष की भी इच्छा छोड़ना जरूरी है, क्योंकि इच्छा कोई भी हो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए वो पूरी बात देखो, आप ऐसे समझो कि जैसे एक हॉल है, उस हॉल में बाहर वो खड़ा है गार्ड, और वो बोल रहा है अंदर किसी को नहीं जाना है, और फिर भी कोई अंदर चला जाता है, तो वो गार्ड उसको निकालने के लिए खुद हॉल में जाता है और उसको निकालता है, निकलो बाहर। तो वो के तुम क्यों अंदर आए? मैं तुमको निकालने के लिए आया हूं। तो सब इच्छाओं को मिटाने के लिए पहले मोक्ष की इच्छा कराते हैं, बाद में मोक्ष की भी इच्छा छोड़ने की उपदेश दे, ऊंची उपदेश है। पहले शुरू में मोक्ष की इच्छा कराते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछा कि ध्यान का क्या स्वरूप है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का खास कर हमको स्वरूप समझाओ। तो आज भी टॉपिक था पर समय नहीं था, तो कभी ध्यान पर भी 1 घंटे का हम एक लेक्चर करेंगे आपके साथ में, ध्यान, तब सब समझ में आएगा। पर अभी शॉर्ट में बताता हूँ, आर्त ध्यान माने क्या और रौद्र ध्यान माने क्या, ये पूछा है। आर्त ध्यान का मतलब होता है जब हमको कोई इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, कोई रोग हो जाए, कुछ पाने की इच्छा हो जाए, तो हमारे परिणामों में जो व्याकुलता होती है, जो दुख होता है, उसका नाम आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान माने दुखी होना, किसी भी कारण से दुखी, आप शॉर्ट में समझ लो, दुखी होने का नाम आर्त ध्यान है। किसी भी वजह से, हाय ये क्यों मिल गया, ये क्यों नहीं मिल रहा, वो कब मिलेगा, ये रोग क्यों हो गया, किसी भी तरह से दुखी होना, इसका नाम आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान माने गलत बात में खुश होना, इसका नाम रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान में तो दुख होता है और रौद्र ध्यान में खुशी होती है, लेकिन वो खुशी गलत होती है। जैसे किसी की पिटाई करके, थप्पड़ मार के, चोरी करके, हिंसा करके, झूठ बोल के हम जो आनंदित होते हैं, हैप्पी होते, गलत बात पर जो खुशी होती है, उसका नाम रौद्र ध्यान है। और जो हमको किसी भी कारण से हम दुखी रहते हैं, नौकरी कब लगेगी, तनख्वाह, पैसा कब ज्यादा आएगा, गर्मी क्यों लग रही है, सर्दी क्यों लग रही है, ये सब दुख के हमारे 24 घंटे आर्त ध्यान ज्यादा होता है। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। किसी कुत्ते को, चूहे को मारना और फिर खुश होना, हंसना, किसी को मूर्ख बनाना और हंसना, ये रौद्र ध्यान है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तीसरा प्रश्न पारुल बहन ने ये पूछा है कि हमको पूजा करते समय कर्म बंद ना हो, इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बहुत बात है, पर अपना मन अच्छा रखना चाहिए। पूजा करते समय नंबर 1, अपना मन अच्छा रखना चाहिए। उस समय आपको कोई और इच्छा नहीं करनी चाहिए, पूजा में पूरा मन लगाना चाहिए। आपको घर की याद, खाने की, पीने की, ये नहीं। और पूजा करते समय और भी बहुत सारी बात है, हमको किसी भी तरह की हिंसा ना हो, हमारे चलने फिरने, बैठने, मंदिर में मजाक, हंसी ठट्टा, झूठ बोलना, कहते हैं ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। मंदिर में कोई तरह की विकथा करना, भोजन की बात, नाना तरह की बात, हंसी मजाक, ये सब करने कोई, हम लोग देखो मंदिर में भगवान के चावल चढ़ाते हैं, औरों की तरह हम कोई चीज नहीं चढ़ाते जिससे हिंसा हो। तो जैन धर्म में
हिंसा बहुत बुरी मानी गई है, और हिंसा नहीं हो किसी भी तरह की, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, ये विवेक रखना चाहिए। और अच्छे मन से विशुद्ध, जितनी देर आपका मन लगे उतनी देर पूजा करो, पर अच्छे मन से करो, वही सही फायदे है, उसी से फायदा होगा। कर्म बांधने के लिए मंदिर में नहीं आए हैं, कर्म काटने के लिए मंदिर में आए हैं। अच्छा प्रश्न है, चारों प्रश्न बहुत बढ़िया पूछे हैं, और उनका शॉर्ट में उत्तर यही है। बहुत ठीक है। बढ़िया। हाँ, बहुत हाँ बढ़िया। और एक छोटा क्वेश्चन है, वो हाँ, थे बोलिए। हाँ, कि 7 दिन के कौन से रस होता है? संडे का सॉल्ट, मंडे हाँ का हाँ, वो आप पूछा मैं है आपको मैं मीनाबेन आपको योगेंद्र भाई। हाँ, मैं आपको कल बताता हूँ। श्योर, ये मेरे अच्छी को भी बात। एक दो जगह मैं भूल जाता हूँ, आपको गलत नहीं, कल आपको सही बताऊंगा। हाँ, तो अच्छी बात है, तो कल, मैं राइट। एक दो जगह भूल जाता हूँ बार बार, हाँ, तो नो मैं, प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। हाँ, वो सही है। जो क्वेश्चन हाँ आ जाए एक दिन के बाद तो सबके लिए अच्छी बात है। सही और है। और भी क्वेश्चन कल देंगे। तो हाँ आज का बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत हाँ ही अच्छी तरह समझाया। तो फिर कल और हाँ, कल बात करेंगे। तो अभी ठीक है। बहुत अच्छा, आप शास्त्र भक्ति का वांचन करो। हाँ, इसके पहले में जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जय जिने। जय जिनेन्द्र। तो कल मिलते हैं। अभी मैं आगे का 10 मिनट का काम ફિનિશ કરતા હું। તો આપણે હવે બધા આજના દિવસના જાપ કરીએ છીએ। હું બોલાવું છું તો આપ બોલજો। ઓમ રીમ ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ। આજનો તપ છે, તો ઓમ રીમ શ્રી ઉત્તમ તપ ધર્માંગાય નમઃ। ઓમ રીમ શ્રી ઉત્તમ તપ ધર્માંગાય નમઃ। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। 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 आप बधाने जेटलो टाइम होय ए प्रमाणे आमां जाप करजो। હવે આજે શાસ્ત્ર ભક્તિ પહેલા આપણે એક અધ્યાય પૂરો કરી લઈએ છીએ, જે 7મો અધ્યાય છે। તો હું વાંચી લઉં ને પછી શાસ્ત્ર ભક્તિ 5 મિનિટ વધારે થશે, પછી આપણે એવરીડે રાઈટ થઈ જાય। हिंसानुत्र क्षेत्र ब्रह्म परिग्रहो विरतिवर्तम देश सर्वतोड़म महति तस्यार्थे भावना पंच पंच वडामनो गुप्ति मर्यादा न निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजानि पंच क्रोध लोभ विरुत्व हास्य प्रत्याखानि विचि भाषण च चंपंच सुनगार विमोचितिवास परोधारक परीक्ष शुद्धि सद्धर्म विस्वाद पंच स्त्री राग कथा श्रवणात्म रंग निरीक्षण पूर्वरतानु श्रवण वृष्टेष्ट रस स्वरी स्वशरीर संस्कार त्याग पंच मनोज्ञामनो इंद्र विषय राग देश वर्जनीय पंच हिंसा द्रिवस मुत्रा प्राय वर्द दर्शन दुखमेवं मैत्री प्रमोद कारुण्यच्च मादयस्थानि स्तव गुणाधिक विलस्यानि अविनेयुषु जगत्काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यर्थ प्रमोत्याग त्यापणु परोपण हिंसा असिबिद दान तम अदतादन सत्येय
मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निसलायो वृत्ति अकार्यन गायश्च अणुव्रतोगारी दिग्नाश दर्ण विरित समायिक औषधो पवासोप भोग परिभोग परिणातिथि संविभाग व्रत संपंच मारुणांति सल्लेखना ज्योतिष शंकाकाश विचित्तानदस प्रशंस संस्था सम्यक दृष्टिरतिचार वल व्रत शिलेषु पंच पंच यथाक्रम बंधवद छेदतारोपणान निरोधा मिथ्या उपदेश रहोपाख्यान कूटलेख क्रिया नाश पहार साकार मंत्रभेदा स्तेन प्रयोग तहादता विरुद्ध ज्योतिक्रमहीन तिकिमानोंत प्रतिरूप व्यवहार परिवाह कारणोति परिगृहता परिगृहता नंग कीड़ा माता व्याभिनिवेश क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धान्य दासी दास कुपल्य प्रमाणिकता ऊर्ध्वी स्त्रीय व्यक्त क्षेत्र वृद्धि स्त्रुमिति आराधनानि अनय्यशी प्रयोग शब्द रूपानुपात पदग लक्षेपा कंदर्प कुत्युर मुख्या समीक्षा अधिकरणों भोग परिभोगार्थ क्यायनी योग दुपणी धाना नादार स्त्र मृत्यु प्रस्थानिनी अप्रत्यवेपिक्षपार्जितोत गदान संस्थ रोपक्रमाणं दरस मृत्य पस्थानानि संचित संबंध सम्मिश्राभिवसः दुपकवहारा सचित निपेक्षी पापिधान परव्य प्रदेश मार्तस्या लतिकमा जीवित मरण संसा मित्रानुराग सुखानुबंधानिनाद अनुग्रहार्थ स्व स्वातिशोगदानम विधि द्रव्यदाता पात्र विशेषा तदशेष इति तत्वार्थगमे मोक्ष शास्त्रे सप्तो अध्याय संपूर्ण। હવે આપણું શાસ્ત્ર ભક્તિ अकेला ही हूँ मैं कर्म सब आए सिमट के लिया है मैं तेरा शरण अब माता सटीकी के ब्रह्मावत है मोको कर्म दुख देता जन्म का करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का दुखी हूँ आभारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में सहा जाता नहीं अकल दबरानी भ्रमण में करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का सुनो माता मोरी अरज करता हूँ दर्द में दुखी जानो मोको डर पकर आयो शरण में कृपा ऐसी कीजे दर्द मिट जावे मरण का करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का पिलावे जो मोको सुबुद्धि कर प्याला अमृत का मिटावे जो मेरा सर्व दुख सारा फिरन का परो पावा तेरे हरो दुख सारा फिकर का करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर पास वेको भानु शिव खानी है छह द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्व पर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभव बताव वेको जीव के जताव वेको काहू न सताव वेको भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है यही जिनवाणी की स्तुति
અલ્પ બુદ્ધિ પરમાન પન્નાલાલ વિનતી કરે દે માતા મોહી જ્ઞાન હે જીનવાણી ભારતી તો ही जपो दिन रेन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो दो। આપ સર્વને જય જિનેન્દ્ર। કાલ સવારે 8:30 વાગે મંદિરમાં મળીશું, જેને પણ લાભ લીધો છે, અને બાકી બધા વર્ચ્યુઅલ। થેન્ક યુ। જય જિનેન્દ્ર।